Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 11th and 12th computer science, and in this I am teaching you Python. Okay, and name of the chapter is mutable and immutable data type. This is our fourth chapter in our book. Okay, in this today we are discuss some method of list. In this today we are first discuss pop method. This method remove and return last object or element from list. Pop method remove and return last object or element from list. Let us suppose we create a list that name is name, and in which we assign some name as a value, Kumar, Dev, Syam, Ram and Alok. And in this list we pop a element using pop method. ठीक? Using pop method, and this pop method return the element those it is pop from list, and we store that element in that variable pop item name variable, and after that we print the pop item. Okay, then it print pop item as Alok because Alok is the last element of a list. चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमने मान लिया कि फ्रूट हमारा जो है क्या है, हमारा फ्रूट जो हमारा है ये हमारा एक लिस्ट है। क्या है हमारा फ्रूट एक हमारा लिस्ट है, और इसमें से हम एक एलिमेंट पॉप कर रहे हैं। किससे पॉप कर रहे हैं? यूजिंग पॉप मेथड से। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वी यूज लिस्ट नेम। लिस्ट नेम क्या है? फ्रूट। लिस्ट नेम क्या है? फ्रूट। फ्रूट हमारा लिस्ट नेम है, एंड वी यूज डॉट ऑपरेटर विद लिस्ट नेम, एंड वी यूज पॉप method, and we know that when we use pop method then it return the element those he delete from list. Okay, then we store that element in a variable. Okay, and that variable is known as pop item. Okay, pop item variable. Okay, after that we print the pop element. Okay, then we use print function, and in this we pass the variable pop pop item, and when we run it, then it print the value kiwi, because kiwi is the last value of our list. kiwi जो है हमारा लास्ट वैल्यू है हमारे लिस्ट का, इसलिए हमें ये आउटपुट में क्या प्रिंट करके देगा? kiwi। क्यों? क्योंकि ये पॉप मेथड जो है कीवी को डिलीट कर रहा है। कीवी को ही क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है। तो ये हमें क्या देगा? कीवी को ही पॉप आइटम में रिटर्न करके देगा। तो ये हमें आउटपुट में कीवी को ही प्रिंट करके देगा। तो चलिए इसको हम रन करा के देखते हैं। तो देखिए ये हमें कीवी को ही क्या दिया? आउटपुट में दिया, क्योंकि हमने कीवी हमारा लास्ट एलिमेंट था। ठीक, अगर हम क्या करें यहाँ पे अपने लिस्ट को प्रिंट कराएं। क्या प्रिंट कराएं? प्रिंट कराएं और अपने लिस्ट को प्रिंट कराएं। क्या कराएं हम यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे अपने लिस्ट को प्रिंट कराएं तो हमें क्या देगा? ये सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा, ये सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा सिर्फ कीवी को छोड़ के। ठीक ना? क्यों? क्योंकि कीवी को इसने क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है, पॉप कर दिया है। तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा एक्सेप्ट कीवी। कीवी को छोड़ के इसने सारे एलिमेंट को क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद हम चलते हैं काउंट मेथड। किसकी तरफ चलते हैं हम? काउंट मेथड। दिस मेथड count how many time of an object occur in a list। क्या करता है? दिस मेथड count how many time, मैंने क्या बोला? दिस मेथड count how many time of an object occur in a list। ठीक ना? समझ में आ गया? ये मेथड ये काउंट करता है कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमारा कितनी बार हमारे लिस्ट में रिपीट हुआ है। ठीक, वी क्रिएट अ लिस्ट विच नेम इज num, and in this we give some integer value. Okay,
and after that we find out how many times 3 repeat in this list. Okay, then it gives 2 as a output, because 3 repeat 2 time in this list. ठीक, 3 repeat 2 time in this list. Then we run it. Okay, then we run it. When we run it, then we get same output. Okay, now we create a list. Now we create a list which name is num, and in which we assign some integer value. Okay, in which we assign some integer value. Okay, and then we count number of time 3 repeat in this list. Okay, we use count method, and in this we pass the value which we want to count. Okay, and when we print it, it gives 2 as a output, because 3 is occur in the list 2 times. Okay, 3 is occur in this list 2 times. Then it gives 2 as a output. Okay, all of you understand it? I hope all of you understand it. Okay, now we discuss other method. Okay, we discuss other method, and that method is named as index method. That method name is index method. Index method return index of an element in the list. क्या मैंने बोला? इंडेक्स मेथड रिटर्न इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट. इंडेक्स मेथड जो है इंडेक्स रिटर्न करेगा किसी भी एलिमेंट का इन द लिस्ट में. ओके, एंड द सिंटेक्स ऑफ इंडेक्स मेथड इज, इंडेक्स मेथड क्या क्या पैरामीटर लेता है, सिंटेक्स क्या है इसका, हम ये देखते हैं. तो इंडेक्स मेथड का पहले हम ये देख लेते हैं ये पैरामीटर क्या लेता है. तो सबसे पहले ये लेगा वैल्यू. सबसे पहले क्या लेगा? ये वैल्यू लेगा, और ये वो वैल्यू लेगा जिसका आप इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं. दूसरा आर्गुमेंट लेगा स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से ये स्टार्ट करना, कहाँ से ये सर्च करना स्टार्ट करे लिस्ट में. इस वैल्यू को कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करे लिस्ट में. और तीसरा है वो एंड ऑफ लिस्ट, कहाँ पे जाके सर्च करना स्टॉप कर दे. ये 3 पैरामीटर पास होता है. ठीक ना. we create a list that name is num. हमने एक लिस्ट क्रिएट किया जिसका नाम क्या है, हमारा num है. एंड इन दिस लिस्ट वी पास सम इंटीजर वैल्यू, और इस लिस्ट में हमने कुछ इंटीजर वैल्यू पास किया. फाइंड आउट द वैल्यू इंडेक्स वैल्यू ऑफ 4. ठीक, इसमें हम इंडेक्स वैल्यू ऑफ 4 का इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. तो देखो इसकी सर्चिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, 1 से स्टार्ट की, यानी इंडेक्स पोजीशन 1 से हमने सर्च करना स्टार्ट किया. तो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ से हमने क्या किया, सर्चिंग स्टार्ट किया. और कहाँ तक हम सर्च करेंगे, 6 पोजीशन तक हम सर्च करेंगे. कहाँ तक सर्च करेंगे, 6 पोजीशन तक हम सर्च करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हम सर्च करेंगे. अगर इसके बीच में हमारा 4 मिल जाता है तो ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा. और देखिए इसके बीच हमारा 4 कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स हमारा 3 है. तो ये इंडेक्स क्या करेगा, हमारा 3 दे देगा. देखिए 0 1 2 3, 4 का इंडेक्स क्या है, हमारा 3 है. तो चलिए इसे हम करके देखते हैं. तो वी मेक अ list that name is num. Okay, and in this we find the index of 4. हम 4 का इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, यहाँ पे num डॉट इंडेक्स लिखा, इंडेक्स लिख दिया. और हम अगर चाहें कि वैल्यू पास करें, तो वैल्यू पास करें स्टार्टिंग और एंड की. ये ऑप्शनल वैल्यू होते हैं. अगर हम नहीं पास करेंगे तो भी ये जो पहले जहाँ पर 4 मिलेगा इसको, वो उस पहले 4 का इंडेक्स रिटर्न करेगा. चलिए इसे रन करा के देखते हैं. तो देखिए इसको जो 4 मिला उसका ये क्या करेगा, इंडेक्स हमें रिटर्न करके देगा. और उसका इंडेक्स क्या है, हमारा 3 है. देखिए 0 1
2 3 3 पे हमारा है। अगर हमने एक 4 और यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये अभी भी पहले वाले 4 का ही इंडेक्स हमें रिटर्न करके देगा, और पहले वाले 4 का इंडेक्स क्या है हमारा 3 है, तो ये 3 रिटर्न करके दिया। बट वी वांट टू गिव दैट एलिमेंट इंडेक्स, इस वाले 4 के एलिमेंट का इंडेक्स चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना होगा, हमें सर्चिंग इस 4 को सर्च करना कहाँ से स्टार्ट करना होगा, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन से। कहाँ पे स्टार्ट करना होगा, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन से। तो जब इस फोर्थ इंडेक्स पोजीशन से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो ये सेकेंड वाला जो हमारे पास, जो सेकेंड वाला हमारा 4 होगा उसका ये इंडेक्स रिटर्न करके देगा। अब अगर हम चाहें तो इसको स्टॉप भी आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। जैसे हमने स्टॉप आर्गुमेंट पास कर दिया कि 6 तक ही सर्च करेगा, 6 से आगे ये सर्चिंग नहीं स्टार्ट करेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये 4 से 6 के बीच में सर्च करेगा। अगर 4 और 6 के बीच में इसे 4 मिल जाएगा तो ये इसका इंडेक्स प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये इसका इंडेक्स प्रिंट नहीं कर पाएगा, अदरवाइज ये इसका इंडेक्स प्रिंट नहीं कर पाएगा। और ऐसे सिचुएशन में ये क्या देगा, 4 इज नॉट इन लिस्ट, ये वैल्यू एरर देगा। और वो वैल्यू एरर क्या होगा, 4 इज नॉट इन लिस्ट। देखिए हमारा फोर्थ कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा फोर्थ यहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये तीनों एलिमेंट के बीच में कोई 4 है नहीं है। तो ये क्या दिया हमें, एरर दिया, वैल्यू एरर, 4 इज नॉट इन लिस्ट, 4 जो है हमारा लिस्ट में नहीं है। तो आई होप आज के लिए आप लोगों को इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, and I request you please like and subscribe St. Angel Public School YouTube channel and share this video to your friend also. Thank you, have a nice day.